गई थी, उसके पास आईसीआईसीआई का कार्ड था, तो उसने वहां जाके प्राइवेट बैंक से विड्रॉ करा मनी, तो उसको 100 CAD उसके कट गए, तो फीस कट गई उसकी 100। Hello everyone, welcome to my channel. My name is Love. If you're new here, I'm Love Tagral and I post videos regarding Canada immigration, Canada visa application, and I would be posting more and more videos and informative videos regarding my entire journey to Canada as an international student. So if you're new here and you're watching this for the first time, I invite you to hit the subscribe button and press the like button as well and be a part of my channel and my journey. I will be posting more and more entertaining and informative videos in the future. In today's video, I will be talking about a really important topic, as you guys can already see from the title. What is the best way to carry money to Canada as an international student or as a worker or like as a PR, as a permanent residence? And because after COVID-19 a lot of rules and regulations have changed and there are a lot of restrictions for you to go out in Canada. So what is the best way to carry money so that you can, when you arrive to Canada, you can easily spend it and you don't have to face any problems? There are a lot of videos and information about it online, but all of those information I thought were pretty old. So I thought, why not just make one video about after all these restrictions, which could help you guys as well as me. So we will be talking about them in detail. Before I begin, Mummy, can you please join me for the video? I'm actually trying to make a video on the information which is in which you know more about than what I know. Also, please bring your book of notes just in case. Well, my mom, she has a habit of making notes regarding all these topics, and she has better information on all these topics. So I thought I'll just invite her for the video, and since she makes notes and research a lot about these topics, and it helps me and my sister a lot, so maybe I thought, why not share it with you guys, and it could help you guys as well. So we'll start the video when she arrives. Guys, this is my mom here. हेलो एवरीवन। तो मैं अपने नोट्स अपने साथ ले आई हूँ। मेरी बेसिकली आदत है कि मैं हर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है वो मैं एक नोट्स बनाती हूँ, उसमें लिख लेती हूँ। जो कि क्योंकि मेरे दोनों बच्चे कनाडा में हैं और अभी रिसेंटली मेरी डॉटर गई है, तो जो मैंने अभी फेस करा, कैसे मनी ट्रांसफ़र करना चाहिए, कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं, तो मैंने उसमें से 4 वेज़ निकाले हैं जो मुझे लगता है कि बेस्ट वेज़ हैं। हम मनी कैसे बच्चों को कैरी कर सकते हैं, बच्चे और PR होल्डर्स हो गए या कोई भी हो गए, वर्कर्स हो गए, तो कोई भी हो गए, तो बेस्ट वेज क्या है। तो हमने वो 4 वेज शॉर्टलिस्ट करे हैं, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि अभी मेरी डॉटर गई है तो उसने क्या फेस करा, क्या उसको प्रॉब्लम्स हुई मनी को लेकर। बेसिकली हम आपको वी विल टेल यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल दीज 4 वेज एंड वी कैन आल्सो टेल यू अबाउट आवर पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। हाँ, और हम ये भी बता सकते हैं, अब जैसे मेरी डॉटर अभी गई है कनाडा, तो उसने क्या फेस करा वहाँ जाके क्वारंटाइन के टाइम पे, कि उसको कैसे मनी, सबसे इजी वे कौन सा लगा मनी स्पेंड करने का, जो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट था। एंड यू कैन आल्सो टेल योर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि शी हैज ट्राइड ऑल द 4 वेज हरसेल्फ इन ऑल दीस 3 to 4 years. So we can also tell you about what is the best way and what is not according to us. We can give you a tips and tricks कि आप कैसे आगे बच भी सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम उस बारे में भी आपको गाइड करेंगे। Okay, तो जो फर्स्ट वे है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट इट, इट्स द हार्ड कैश. So basically this is the Canadian dollars that you can carry with you when you travel to Canada. और इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए जब हम हार्ड कैश लेके जाएं, कि एक तो हमें RBI की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए कि कितना अलाउड है हमें, किस कंट्री से आप कर रहे हैं या किस कंट्री से आप जा रहे हैं। प्लीज चेक द गाइडलाइंस कि आपको कितना कैश अलाउड है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें 2-3 जगह से रेट्स ले लेना चाहिए, लाइक वेस्टर्न यूनियन हो गया, बुक माई फॉरेक्स हो गया, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कैश डॉलर्स हम जिनसे ले सकते हैं, और बैंक्स हो गए। तो और मेक श्योर कि आप रिसिप्ट और उसका बिल जरूर लीजिए, कई बार वो इमिग्रेशन में मांग लेते हैं। मेक श्योर कि आप रिसिप्ट जरूर कैरी करें, रिसिप्ट और उसका बिल जरूर आपके पास होना चाहिए कि आपको इमिग्रेशन में या आपको ट्रैवलिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कैश लेके जा रहे हैं तो जैसे जो भी RBI की गाइडलाइन है उससे थोड़ा सा आप कम ही लेकर जाइए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े अपनी ट्रैवलिंग के टाइम पे। और कैश बहुत काम आ जाता है समटाइम्स, बहुत अच्छी मतलब होना चाहिए, लाइक थोड़ा बहुत होना चाहिए
इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए थोड़ा बहुत कैश तो कैरी करना चाहिए। ये तो मम्मी इसके एडवांटेजेस हो गए, बट लाइक व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैरिंग हार्ड कैश? लाइक हार्ड कैश कैरी करने में देखो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम बहुत सारा कैश लेकर जाते हैं तो हर वक्त हमें टेंशन लगा रहेगा, हर वक्त हमारे माइंड में लगता, हम मतलब सेफ सिक्योर नहीं फील करते हैं। और अगर हम यहाँ से होटल्स या B&B समटाइम्स हम बुक करते हैं तो हमें लॉकर्स अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पर, तो ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हम कैश रखेंगे कहाँ पे उस टाइम पे, जो हमारे पास होगा लगेज में रखेंगे, तो मतलब प्रॉब्लम तो है ही ना। कैश की वजह से टेंशन और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैश का प्रॉब्लम रहता है। इवन जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो सूटकेस में हम रख के जाएंगे, तो बाय चांस एट द एयरपोर्ट थोड़ा मन में मतलब वो रहता है कि यार कि पैसे सेफ तो है ना हमारे। हाँ। एंड आई थिंक इसके अलावा जो कुछ डिसएडवांटेजेस जो मेरे दिमाग में आते हैं कि फर्स्टली देयर इज एन अपर लिमिट टू हाउ मच यू कैन कैरी कैश एट द एयरपोर्ट, कि एक लिमिट तक ही कैरी कर सकते हो। उसके अलावा सिंस आई हैव ऑलरेडी बीन इन कनाडा वंस, सो आई नो कि वहाँ पे इतना कैश नहीं चलता। पीपल मोस्टली यूज एंड प्रेफर टू यूज क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स इन एनी ट्रांजैक्शन। Thirdly, because you'll be in quarantine for the first 14 days when you travel, so you can't really spend cash in anything you order. Even if you order groceries online, you'll have to pay it through credit card or debit card online. And so basically the cash is no longer of use. So cash and other thing, one more thing that comes to my mind is you can't even book an Uber to go anywhere after quarantine, right. because वो भी cash नहीं accept करते, वो भी I think you need to use your card. We discussed the advantages and disadvantages for carrying hard cash. तो मम्मी आपका conclusion क्या है कि what do you think क्या होना चाहिए about hard cash? लाइक अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बहुत कैश तो लेके जाना चाहिए कि कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है, तो 2000-2500 कैड आप लेके जा सकते हो। आई थिंक 2000-2500 कैड, और आपको जितना कन्वीनियंट लगे कि हाँ मैं इतना इजीली रख लूंगा, संभाल पाऊंगा, उतना आप कैश के फॉर्म में लेके जा सकते हो। और भी बहुत सारे वेज हैं। फॉरेक्स कार्ड, लेट्स डिस्कस फॉरेक्स कार्ड। हाँ, आई थिंक यस। सो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है फॉरेक्स कार्ड। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है दैट इज द फॉरेक्स कार्ड। तो मम्मी व्हाट इज द फॉरेक्स कार्ड? फॉरेक्स कार्ड जो है वो एक प्रीपेड कार्ड है और बहुत कन्वीनियंट कार्ड है, उसमें आप कोई लिमिट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मोस्ट कन्वीनियंट, नो अपर सीलिंग, और कितना भी आप उसमें कैश मतलब कितना भी पैसा आप उसमें लेके जा सकते हो एक कार्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम पे क्वारंटीन के टाइम पे ये कार्ड आप आराम से इजीली यूज कर सकते हो। वहाँ आपको ग्रॉसरीज ऑर्डर करना है, कुछ भी चीज ऑर्डर करना है, तो कन्वीनियंट कार्ड। Because you cannot go outside during the quarantine and you have to like stay inside the house. So like we mentioned, you can't use cash for that. So I think like what you're saying is Forex is the best way on how you can order things online when you're in the quarantine. And दूसरा जैसे इन्होंने कहा कि इसमें अपर लिमिट नहीं है, तो you can put as much money as you want in the Forex card. और ये भी बहुत तरह के होते हैं, लाइक RBL का कार्ड आ रहा है, ICICI का कार्ड है, तो आप ले सकते हैं। और इस कार्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि आप कुछ भी ग्रॉसरीज ऑर्डर करो, कुछ भी ऑर्डर करो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ के लिए। पर 2-3 बातें हैं वो आप ध्यान भी रखिएगा इस कार्ड को लेकर कि अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं इस कार्ड से तो उसकी भी लिमिट होती है। आई थिंक 1000 या 2000 कैड। वो आप जो भी कार्ड लेते हैं, RBL का लें, ICICI का लें, या जो भी कार्ड लेते हैं, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि उसकी क्या लिमिट है। और दूसरा पॉइंट है कि हमेशा लोकल बैंक से निकालिएगा पैसे। अभी हमारे साथ हुआ कि मेरी डॉटर गई थी, उसके पास ICICI का कार्ड था, तो उसने वहां जाके प्राइवेट बैंक से विड्रॉ करा मनी, तो उसको 100 कैड उसके कट गए, तो फीस कट गई उसकी 100 कैड, जबकि $3 आई थिंक चार्ज होता है, कटना चाहिए, पर उसका प्राइवेट बैंक से करा तो $100 उसका कन्वर्जन रेट उन्होंने चार्ज कर दिया। आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा और मेक श्योर कि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कैश विड्रॉ करना पड़ जाए तो पब्लिक बैंक से कीजिएगा, नॉट फ्रॉम प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक से ही करिएगा, $3 कटेंगे और आप कैश 2000 या 1000 जितना भी लिमिट हो आप निकाल सकते हैं। और अगर वैसे अकॉर्डिंग टू मी कंक्लूजन ये है इसका कि ये अच्छा वे है मनी कैरी करने का अगर आप कनाडा जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज है टू कैरी मनी थ्रू फॉरेक्स कार्ड। एंड जो हमारा $100 का एग्जांपल था कि जो हमारी $100 की फीस कटी, वो तो एक जस्ट एन एग्जांपल था जो हमारे साथ हुआ। तो बेसिकली फीस कुड बी इवन मोर हायर देन दिस। तो आई थिंक दिस इज ओनली व्हेन यू विड्रॉ फ्रॉम द प्राइवेट बैंक्स
But other than these points, I think forex card is one of the best ways to carry money. It's the best way. और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब विड्रॉ की जरूरत हो तभी विड्रॉ करें, अदरवाइज नहीं जरूरत तो आप उसको वैसे ही यूज करिए कार्ड को. ओके, तो जो तीसरा वे है ऑन हाउ यू कैन कैरी मनी इज थ्रू अ बैंकर्स चेक और अ ट्रैवलर्स चेक. So this is like a demand draft from the bank. So basically, to explain it in a simple language, you can go to your bank in India, get the traveler's check, fill out the amount, and once you travel to Canada, you can carry that check with you in a file. And when you arrive in Canada, you cannot use the check directly. So basically, आपको quarantine खत्म करना होगा. Once you finish the quarantine, then you go to the bank account like Scotia Bank or any other bank. You need to get your bank account open up in that bank. And then आपको वो चेक जमा कराना होगा. You need to get that check deposited. After you get that deposit, it takes around 8 or like 7 days, 8 days depending on your bank कि कितने दिन में आपकी वो अमाउंट शो होती है वहाँ पे. तो या it does take around 8 to 10 days to show in your account. तो अब बेसिकली क्या है कि आपको उन 8-10 दिन के लिए भी अपने पास एक बैकअप रखना पड़ेगा कि यार 8-10 दिन तो बैंक अकाउंट में शो होने में लग जाएंगे, तब तक आपके पास स्पेंड करने के लिए पैसे होने चाहिए. so that you can do you can get cash or you can use forex card. बस आई थिंक यही इसका एक मेन डिसएडवांटेज है, द अमाउंट ऑफ डेज इट टेक फॉर इट टू शो इन योर बैंक अकाउंट. नहीं, बट इसका एडवांटेज भी है कि आप एक डीडी की फॉर्म में, एक चेक की फॉर्म में, बैंकर चेक की फॉर्म में आप इसमें जितना मर्जी आपका जितना पैसा है यहाँ से आप लेके जा सकते हैं. तो मतलब बहुत इजी है. ये है कि आपके बैंक में ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये बहुत कन्वीनियंट वे भी है कि आप इजीली इसको लेके जा सकते हैं. बट क्वारंटाइन के टाइम आई थिंक ये यूज नहीं होगा. ओके, तो जो हमारा फोर्थ एंड जो लास्ट वे है थ्रू विच यू कैन कैरी मनी और ट्रांसफर योर मनी इज थ्रू वायर ट्रांसफर. तो बेसिकली हाउ टू स्टार्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप इज दैट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू ओपन एन इंटरनेशनल अकाउंट. In Canada, it could be in Scotia Bank or TD Bank or any bank that you prefer in Canada. तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके उनकी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं. And then from your Indian bank, you can transfer your money directly to your Canadian bank account. तो इसमें तो आई थिंक दिस इज 24 आवर्स लगते हैं, पैसा आपका पहुंच जाता है विद इन 24 आवर्स. अब जैसे हम इन बच्चों को भी भेजते हैं पैसे कनाडा में, तो हम वायर ट्रांसफर करते हैं. तो बेस्ट वे है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है पर अच्छा है, कन्वीनियंटली इनको 24 आवर्स के अंदर पैसे मिल जाते हैं. आई थिंक वो फीस करती है ट्रांसफर फी, but it is one of the safest ways. Right. And it takes around 1 to 2 days for us if we are in Canada for the money to come in our account. इसका डिसएडवांटेज भी है कि लाइक अब जब तुम अकाउंट खोल लोगे, जब तक तुम्हारे पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं आएगा तो आप वहाँ मनी कैसे स्पेंड करोगे. That's true, because when you open an account from India, you would need to go to the bank there to get your credit card and debit card, and वो भी आप after quarantine ही कर पाओगे. तो this is I think one of the disadvantage that you'll only be able to spend that money once you get your debit card and credit card. So yeah, I think that's it. These are the 4 ways that we could think of and which could be beneficial for you on how you can carry your money. And I think जो conclusion में जो I think according to both of us जो best way हमें लगता है for now after all these COVID-19 restrictions is your forex card, क्योंकि वो आप in quarantine भी spend कर सकते हो, quarantine के बाहर भी spend कर सकते हो. just वो public बैंक account की फीस करती है. उसके अलावा I think it is one of the best ways to carry your money. Right. So lastly मैं एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप क्वारंटीन से बाहर आ जाएं और आप अपना बैंक अकाउंट यूज करने लग जाएं, क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाए, आपका डेबिट कार्ड मिल जाए, तो मैक्सिमम यूसेज आप क्रेडिट कार्ड का करिए. एक तो उसका मेन पॉइंट है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बिल्ड होगा. जितना आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे, जितना आप मतलब खर्चा करेंगे क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट स्कोर अच्छा बिल्ड होगा जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा. एक क्रेडिट स्कोर होना बहुत जरूरी है कनाडा में, अच्छा क्रेडिट स्कोर. So that's it for today's video, guys. I do hope you find this video helpful. It clarifies your doubts. And if you find this video helpful and informative, guys, please do like the video, subscribe, and be a part of my channel. And I'll post more videos in the future. Till then, I'll see you guys in the next video. Bye. Bye. So like we discussed, 2-4 कमेंट आ जाए एक बार ऐसे. तो हम बीच में फन भी कर